यस सर। हाँ जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम आपका। आज इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर आपका इस इंडक्शन प्रोग्राम सीपीवाई प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम में बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी 2026 सेशन के लिए आपने सीपीवाई प्रोग्राम में दाखिला लिया है और इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर को एज ए नोडल आरसी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। और आज हमने इंडक्शन प्रोग्राम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सर आपको हमने अनम्यूट राइट्स दे दिए हैं, आप अनम्यूट हो आप प्लीज। तो आज की इंडक्शन प्रोग्राम में इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर नोडल आरसी है। इस नाते हमने इंडक्शन प्रोग्राम सीपीवाई प्रोग्राम लर्नर्स के लिए आयोजित किया है। इंडक्शन प्रोग्राम का पर्पज होता है कि आपके प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी एकेडमिक या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है उसके बारे में आपको वाकिफ करवाना, उसके बारे में जानकारी देना, कहाँ पर कब आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, कब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम एक्टिविटीज होगी, आपकी एलएससीज के बारे में तमाम जानकारी के रिगार्डिंग ये प्रोग्राम हमने आयोजित किया है। तो मैं इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर की ओर से डॉक्टर इंदु रवि डिप्टी डायरेक्टर को अनुरोध करूंगा कि मैडम प्लीज आप जो आइए और अपनी रिमार्क्स, वेलकम रिमार्क्स के रूप में आप हमारे फैकल्टी मेंबरान डॉक्टर विप्लव जमाटिया सर का वेलकम करेगा। डॉक्टर इंदु रवि मैडम प्लीज। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन हम दूसरे प्रोग्राम में बिजी थे तो इसलिए 5-7 मिनट हमको डिले हो गया सर थोड़ा। थैंक यू वेरी मच। मैडम आप ज्वाइन कर लिए? जस्ट 1 मिनट। Thank you very much giving me this opportunity and including me in this induction meeting. And this is the induction meeting for across the country students of the January 2026 batch. And this time IGNOU Regional Center Jaipur is the nodal center for the across the country. So before going into the main things, there are a few important requests I would like to make to the Regional Center Jaipur as well as other students. The Regional Center Jaipur, I would like to request, I hope you will do the online practical sessions to cover up all the students from across the country. There are many regional centers where we have a few students, like 2 students, 4 students, less than 10 students in different regional center in different part of country. Yeah, I hope you will handle their practical training and practical examinations through online. And there are a few regional centers where we do not have the academic counselor also. So from such center, I am requesting Regional Center Jaipur to evaluate the assignment also, the theory assignment. Okay. And one more request I would like to submit to the Regional Center Jaipur is there are a few students left out in different part of the country from previous batch. Since this program is having 2 years validity, like one student from Ladakh constantly contacting me, one student from Port Blair. So those students are also willing to participate your things. So I will share the student record from different regional center from previous batch whose validity is still there. And I am requesting you to kindly accommodate those students also. And for the students, this is a certificate program of yoga, and many people are still thinking that yoga means some kind of asana or postures. Here I would like to tell that योगा सिर्फ आसन नहीं है, योगा में और भी बहुत कुछ होता है जो कि आपको सीखना है. And
we do not promise any job guarantee by doing this program, because the objective of the program is not to create a job, rather than empowering all of you to know that you should practice and you can teach others also about the correct form of yoga. Not only the different postures, but by your actions, आपकी सोच में से, आपकी कर्मों में से, आपकी जिंदगी का जो रहन सहन में से, आप अगर योगा पढ़ने की बात, योगा करने की बाद फिर जंक फूड जाके खा लिया, फिर तो उस योगा पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रहा। फिर आप प्राणायाम किया, 10 मिनट आसन किया, फिर अगर आप यही सोचते रह गया कि उसका शर्ट और उसका इंस्टाग्राम में मेरे इंस्टाग्राम से कैसे ज्यादा लाइक है, तो फिर the purpose of yoga is getting defeated. So we give you the 2 theory course which is having a very exhaustive in nature, and I would like to request all of you to read them, although it is in English, but the course materials are written in a very properly, and the practical manual book also written very well. So all of you are requested to try to finish the program as early as possible. Do not wait for the 2 years to complete this program, and you need to submit the exam form on time. Right now it is going on, or if right now you feel that it is very short period of time to complete the entire book, you can plan for the December exam also. So if you feel that you can complete only one course, then you can write only one course. There are many students who do not fill the practical exam form. So if you are thinking that this December you can complete this practical, so you also need to fill the practical exam, and it is not carry forward in nature. It means if you do not appear in exam in the December 2026, again you have to fill the exam form for the practical exam and theory exam also. So these are the few informations. If you want me to tell some of the detail of the program, I can tell you very briefly. I will just take some time. I hope this my screen is visible, and yes, it is visible, sir. Yes. Yeah. So this is the things I just would like to. The purpose of the yoga is yoga program is just for the mass awareness purpose. And as you see, the objective is to know about the history, contributions of the yogis, comprehend the basic principles and protocol of yoga program developed by Ministry of Ayush, demonstrate the yoga practices for preventive disease and adoptions of yogic lifestyle, and holistic health for himself, for yourself basically, for the enhancing functionality about the life. These things you all know that it is for the 12 pass candidate, and this is the course, 2 theory course and 1 practical course. This BYG 001 and BYG 002, these are the 2 theory course. Why I am telling you is, whenever you do any communications with either me or regional center, please write your enrollment number, your program code, your program code and course code, so that we can identify your problem. Otherwise, if you just write my assignment marks are not updated, we really don't know who you are and which course you are talking about. This is one is the practical course. So this is the 16 credit program, 4 credit each of the theory course, and practical course is 8 credit. The theory course is having 4 blocks, like block 1 is covered this yoga meaning, history and streams. Block 2 cover the brief introductions of yogic text. Contributions of different yogis are covered in block 3, and block 4 covers concept of fundamental yogic terminology. So this is a very comprehensive book. बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम में जो चीज पढ़ाए जाते हैं वो बहुत सारे यूनिवर्सिटी की
इवन पीजी डिप्लोमा लेवल पे वो पढ़ाए जाते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम लोगों ने आप लोगों को काफी अच्छा एक कोर्स मटेरियल देने का कोशिश किया। दिस इज द योगा एंड हेल्थ वेयर यू टॉक अबाउट द योर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि हम जब योगा की बात करते हैं हम वैक्यूम में बात नहीं कर सकते, सो वी नीड टू टॉक, we need to learn about our anatomy and physiology and yogic concept of health, yoga and mental health, particularly आज के दिन में जो different stress level की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट में जो सुसाइड अटेम्प्ट देखने को मिलता है, आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। आप योगा की तरफ से कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं ये आपको बहुत मदद करेगा। एंड ब्लॉक 4 इज योगिक लाइफस्टाइल, मतलब आप एक योगी की तरह कैसे जी सकते हैं, जो अपनी मन में पूरा एक संपूर्णता लाके जीवन की और प्रकृति के साथ अपने आप को एक जुड़ाव रख के, सो यू हैव टू बेसिकली कनेक्टिंग योरसेल्फ along with the nature and your inner force and outer force, and so that you can do best in your life. और फिर practical manual book और log book. This log book you need to write by yourself, by your hand, while doing this practical given by the EU. You can write before also, but you have to show during the examinations time. And I will not read the detailed unit. There are many, every course is having like course 1 is having 18 units, okay, and course 2 is also having like 14 units. I will not read throughout them. And there are 7 units. Unit means chapter of the practical books, okay, where we talk about the meditations, loosening exercise, sharp karmas, asana, surya namaskar, and asana 2, pranayam, mudra and bandhan, ठीक है। एंड ये मैं डिटेल में इतना बताऊंगा नहीं। हमारा ये जो 10 दिन का ट्रेनिंग है और 12 दिन का ट्रेनिंग है, दिस इज फ्लेक्सिबल। यहाँ ये चीज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है आपका मार्किंग। आपका 50% मार्क स्कोर करना है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में इंडिपेंडेंटली। ऐसा नहीं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के पास करना है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको और भी अच्छे से पढ़ना जरूरी है। यू नीड टू रीड इट वेरी सिंसियरली so that every component you can score 50% marks, okay। Then this is the marking scheme I would like to emphasize to all of you, because see, there are like satkarmas like jal niti, ravar niti, you have to do that. Satkarmas is having 25 marks. We are very serious about it, and in our examination and instruction we tell our teachers very seriously, if you feel that student don't know, strictly fail them। आपका जो सत्कर्मास, आप बोलते हो कि मैंने तो जल नीति किया, लेकिन आपने फिर कैसे बैठा, कैसे गर्दन टिल्ट किया, कैसे आपने पानी डाला, वो सब छोटे छोटे कंपोनेंट में आपका मार्क्स होते हैं। सिर्फ पानी डाल के निकालना ही जल नीति नहीं होता, या फिर रावड़ डाल के सिर्फ निकालने ही रावड़ नीति नहीं होता। उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे टेक्निक है, एवरीथिंग यू हैव टू बी डू वेरी सीरियसली एज पर दिस गाइडलाइन। देन सूक्ष्म क्रिया 5 मार्क्स, सूर्य नमस्कार आपको करना ही है जिसमें 10 मार्क्स आते हैं। आपका 6 आसना, 2 स्टैंडिंग आसन, 2 सिटिंग आसन एंड 2 लाइंग डाउन आसन, 15 मार्क्स। प्राणायाम आपको करना है 15 मार्क्स, मुद्रा एंड बंदर 10 मार्क्स, लॉग बुक आपको लिखना है जिसमें 10 मार्क्स मिलता है, बाइबा गुसित 10 मार्क्स। ये आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का असेसमेंट मार्किंग स्कीम है, जो कि हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो अप करते हैं। ये मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूं, so that you know that this is the way I will be evaluated. If you miss this satkarmas, then see 1/4 of the marks, 25 marks is gone. If you miss the mudra and bandha, 10 marks is gone. If you miss the pranayama, then 15 marks is gone. So just by doing asana, like 15 marks, 10 marks, and 5 marks, it will be very difficult for you to obtain the 50% marks. Okay, so this is the things for you. Yeah, so
there are a few important issues I would like to request you. Read all the document properly, particularly the program guide I am providing. Visit IGNOU guideline regularly. Follow the rules and regulation of the university. I will try to make a one WhatsApp group very soon and try to give you these things, connect, and online exam form. You need to fill it in time. And यहाँ पे ये जो no need to pay ये earlier versions में होता था. If you need any kind of email, need support, you can email me. So these are the few important things I would like to tell. So thank you very much giving me this opportunity, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इग्नू रीजनल सेंटर जयपुर आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता है कि आपने सीपीआई प्रोग्राम की प्रैक्टिस असाइनमेंट या अदर एक्टिविटीज के बारे में बताया। प्रोग्राम स्ट्रक्चर को लेकर बच्चों को कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे को, वो बताया। तो मैं पुनः आप सबके प्रति, विशेषकर डॉक्टर विप्लव जमाटिया साहब आपके प्रति बहुत आभार कि आपने इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में, इसमें बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। तो कुछ स्टूडेंट्स के सवाल थे सर आपकी ओर से, आपके लिए, कि उनको एक तो इस एक्टिविटीज के रिगार्डिंग कुछ ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस का कुछ लिंक्स मिल जाए तो ज्यादा उनको मुनासिब रहेगा। बाकी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हमारे आरसी की तरफ से हमारे पास स्टडी सेंटर है, उसके मार्फत से हम, जैसा आपने कहा है, उसके हिसाब से हम उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। और पुराने जो ड्रॉप आउट, जो पिछले लर्नर से जो पिछले सेशनों के छूट गए थे, जो 2000 एलिजिबल स्टिल, उनको भी हम इसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए इंक्लूड करेंगे, उनको भी इंटीमेट किया जाएगा आरसी जयपुर की तरफ से। और अभी हमारे साथ डॉक्टर शेर सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि एग्जाम से रिलेटेड एक्टिविटी या प्रैक्टिकल इस प्रोग्राम के बारे में एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना, क्योंकि दो काम आपको करना है सीपीआई प्रोग्राम के लर्नर्स को। एक तो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, जो अभी 26 अप्रैल तक विदाउट एनी लेट फीस यू कैन सबमिट योर एग्जामिनेशन फॉर्म अभी। और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज भी आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल करना होता है। तो इन और असाइनमेंट्स 38 अप्रैल तक आपको अपने असाइनमेंट कंसर्न स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं। और तो ये दो इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए जरूरी थी। और आपकी बाकी की एकेडमिक एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, जिसमें हमारा रीजनल सेंटर एक नोडल आरसी है, तो हमारे एलएससी के मार्फत जब भी कोई एकेडमिक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगी, उसकी जानकारी आपको जिस तरह इंडक्शन प्रोग्राम के लिए दी गई थी, उसी तरह हम लोग आपको ईमेल, एसएमएस और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आप तक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर शेर सिंह जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली जॉइन अस एंड शेयर योर व्यूज प्लीज। क्योंकि डॉक्टर शशि नहीं आया तो मैं कुछ स्टूडेंट्स का सवाल का जवाब दे देता हूं। प्लीज सर, यस सर, सर प्लीज करिए। यस सर, यस सर। आपका देखिए, बहुत सारी जगह पे आपका सेंटर कराएगा प्रैक्टिकल। ये ऐसा नहीं है कि आपको सब लोगों को जयपुर के ऊपर डिपेंडेंट करना है। जहां जहां पे प्रैक्टिकल एक्टिविटी होगा तो वहां पे आप अपनी रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर में संपर्क करिए। प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो डेट्स है वो हर रीजनल सेंटर, हर स्टडी सेंटर अपने हिसाब से डिसाइड करता है। जैसे कि जो हैदराबाद में होगा वो अलग डेट होगा, बेंगलोर में अलग डेट होगा, दिल्ली में अलग डेट होगा, जयपुर में अलग डेट होगा, कलकत्ता में, पटना में अलग अलग डेट पे होगा। आप ऐसा कर नहीं सकते कि आपका मतलब कि पटना में हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा। पटना में डेट अलग से वो लोग डेट डिसाइड करते हैं। और मैं ये सबको बताऊंगा, जहां जहां पे रीजनल सेंटर में प्रैक्टिकल हो रहा है वहां का स्टूडेंट अपने रीजनल सेंटर की कंडक्शंस ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, ना कि आप जयपुर के ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि सो दैट उसमें एक जो डुप्लीकेशंस ऑफ द एक्टिविटी को हम वो करेंगे, अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम अटेंडेंस बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी स्टूडेंट्स का अगर 10 दिन या 11 दिन, बेसिकली हमारा 11 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और 12th डे में हम इंटरनल एग्जामिनेशन कराते हैं।
अगर किसी भी स्टूडेंट्स का 11th अटेंडेंस नहीं होता है तो आप उनको इंटरनल एग्जाम कंडक्ट मत कराइए। उनको आप बोलिए कि आप नेक्स्ट सेशंस में आपका रिमेनिंग अटेंडेंस पूरा करके फिर आपको करना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा 8 अटेंडेंस कंप्लीट हो गया फिर आप मुझे अलाउ करिए। आप ऐसा रिक्वेस्ट मत करिए, हम ऐसा रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, आपको सीरियसली सारा सेशन अटेंड करना है। और आपको एग्जाम में देखिए, ऑनलाइन एग्जाम में पास करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि एग्जामिनर्स हर किसी को स्क्रीन के सामने बोलता है कि आप वृक्षासन करके दिखाइए, आप ये आसन करके दिखाइए। अगर आपको नहीं आता है तो नहीं आता, आप उस टाइम में मतलब कि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को, स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग सिंसियरली करिए और अच्छे से करिए, ताकि आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से फायदा हो। थैंक यू। इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कितना असाइनमेंट कब तक जमा कराने हैं, असाइनमेंट के बारे में थोड़ा काइंडली। असाइनमेंट आपको 30 तारीख तक अभी के हिसाब से डेट है, लेकिन कभी कभी यूनिवर्सिटी जो है डेट एक्सटेंड भी करते हैं। ठीक है, तो आप अभी से असाइनमेंट 1 लिखना शुरू करिए, कोर्स 1। इट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द इग्नू वेबसाइट। मैं 1-2 दिन में आप सब लोगों को ईमेल में भी भेज दूंगा असाइनमेंट का कॉपी। तो आपको असाइनमेंट लिखना शुरू करिए, और 30 तारीख तक अगर आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में जमा कराइए। लेकिन इसी दौरान यूनिवर्सिटी कभी कभी डेट एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए अगर हो गया, वो आपको यूनिवर्सिटी का वेबसाइट से कंफर्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप असाइनमेंट 2 भी लिख के जमा कर सकते हैं। तो ये है, अभी जैसे सर ने बताया 26 तारीख तक आप एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अभी इस टाइम में आप दोनों एग्जाम थ्योरी दे सकते हैं तो आप थ्योरी दोनों दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिकल कर पाऊंगा तो आप प्रैक्टिकल ही फॉर्म फिल करिए। बहुत सारा स्टूडेंट्स का ये कॉम्प्लेन है, मैंने तो प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया लेकिन मेरा प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं क्यों आया। तो उसका सिंपल जवाब है क्योंकि आपने प्रैक्टिकल फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो इसलिए आपका मार्क्स जो है कभी भी होगा नहीं। इसीलिए अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है प्रैक्टिकल एग्जाम के, तो प्लीज आप एग्जाम में अपियर मत होइए। सिस्टमेटिकली हम आपको मार्क्स नहीं करा सकते, और कभी भी अगर पाए जाते हैं सिस्टम में, फिर आपको फिर उसको नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको अमान्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर असाइनमेंट जमा नहीं करके भी अगर आप एग्जाम देते हैं, और अगर बाद में ये नोटिस में आता है यूनिवर्सिटी का कि आपने असाइनमेंट थ्योरी एग्जाम का जमा नहीं किया और आपने असाइनमेंट थ्योरी एग्जाम दे दिया, तो इन केस भी आपका जो है वो हो जाएगा कि आपका एग्जाम अमान्य हो जाएगा। आपका असाइनमेंट का इग्नू वेबसाइट में स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा इग्नू वेबसाइट दिखा देता हूं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये हमारा इग्नू वेबसाइट है। ठीक है, आपको सबका स्क्रीन दिख रहा है ना। तो इसमें देखिए, स्टूडेंट सर्विस में जाइए। आप जब स्टूडेंट सर्विस में जाएंगे तो वहां पे आपका डाउनलोड करके एक लिंक मिलेगा। तो डाउनलोड में आप जैसे कि करंट असाइनमेंट पोर्टल में जाने से आपको यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा कोने में, यहाँ पे सर्च में, तो यहाँ पे BYG 001 डालने से आपका ये BYG 001 का जनवरी 2026 का असाइनमेंट मिल जाएगा। तो आपको डाउनलोड से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टूडेंट सर्विस में जाने से आपको ओल्ड क्वेश्चंस पेपर का मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिसंबर 2024 करने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक करने से आपको सपोज जो ये दिसंबर 2023 का आपको ढूंढना है, कंट्रोल F करके CPY करने से आपको नहीं मिलेगा, तो आपको कोर्स कोड डालना है BYG। हाँ, जैसे कि BYG 001 आ गया तो आपको यहाँ से डाउनलोड
कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ऐसे ही हमारा जो एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट से जून महीने में कब कब होगा उसका भी हमारा अभी से ही पूरा डेट रहता है। नॉर्मली वो डेट चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ पे सर्च में जाके टेंटेटिव डेट ऑफ जून तो इसमें आपका टेंटेटिव डेट्स ऑफ जून 2026 का आएगा। ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसको आपको सर्च में करके आपको BYG करने से, देखिए BYG का आपको 6 जुलाई को प्रपोज डेट है और ये लगभग सही है। फिर आपका नेक्स्ट डेट कब है, ये 8 जुलाई को BYG 002 का। तो ये टेंटेटिव डेट्स हम कम से कम 4 महीने पहले यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो आपको ऐसे ही वो है। तो किसी किसी को अगर किताब नहीं मिलने से आप MPDD में कांटेक्ट करिए, फिर आपको MPDD से आपको बुक मिल जाएगा और सर आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि उनको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो उसका अगर लिंक, ये ज्ञान कोश का लिंक मैं आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप गूगल में जाइए, सॉरी मैं आपको ये स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप दो थ्योरी एक प्रैक्टिकल है। तो डियर लर्नर्स, आप सबको 2 थ्योरी पेपर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म अलोंग विद प्रैक्टिकल के लिए बिफोर 26 अप्रैल अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसमें थ्योरी अलग लेना है और प्रैक्टिकल अलग लेना है। दोनों के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। असाइनमेंट आपको 30 अप्रैल तक अपने कंसर्न स्टडी सेंटर पर सबमिट करने हैं और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की इंटीमेशन आपको कंसर्न LSC के माध्यम से आपको मिल जाएगी। जहां यहाँ पर मैं कई सारे सवाल देख रहा हूँ, कोई चेन्नई से, पोर्ट ब्लेयर से, के हमारी बेंगलुरु से। आपकी जब भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होगी उसकी जानकारी आपको अपने कंसर्न स्टडी सेंटर के माध्यम से, कंसर्न रीजनल सेंटर के माध्यम से, आपको SMS के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। आज जो इंडक्शन प्रोग्राम किया गया था, इसका मकसद था कि आपको CP प्रैक्टिकल और थ्योरी एक्टिविटीज के बारे में वाकिफ कराना, how to access the study material link, how to fill the examination form, what is the practical activities where you have to perform, what is the role of LSC, what is the role of learners, what is the role of IGNOU regional centers, and what is the role of program coordinators. Fortunately today we are with us, Dr. Biplab Jamatia sir is associated with us. He is with us today. He is sharing all details about the programs, practical activities, how you have to perform to complete these programs without taking 10-12 days practical activities. You cannot go complete your programs. So please be aware, and you are advised to complete your practical activities as per given the guidelines by IGNOU. There is no relaxation, there is no flexibility. There are certain process that you have to follow during your program activities, please. थैंक यू। तो देखिए आपको गूगल शीट देख रहा है, तो आपको ये ज्ञान कोश टाइप करना है गूगल में, ठीक है। तो दिख रहा है ना आपका वेबसाइट में। तो यहाँ पे ये ज्ञान कोश में आपको जब जाएंगे, अभी तो खुल नहीं रहा है ये ज्ञान कोश, अच्छा होप सो खुल जाए। मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, ठीक है। सारा स्टूडेंट्स को, हाँ अभी खुल नहीं रहा है इग्नू ज्ञान कोश। अच्छा एग्जामिनेशन का मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट सर्विस में जब आप जाएंगे ना, स्टूडेंट सर्विस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको एग्जामिनेशंस में आएंगे। देखिए एग्जामिनेशंस में क्लिक करने से आपको ये पेज खुलेगा जहां पे आप मतलब कि एग्जामिनेशंस आप अपना करके, अपना एनरोलमेंट करके, यूजर नेम डाल के आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो मतलब कि आपको मतलब कि इग्नू का वेबसाइट में थॉरोली आपको विजिट करना है, सो दैट आपको मतलब कि प्रॉपरली आप अपने आप को हेल्प कर पाए। जब आपका रिजल्ट दिखना हो तो रिजल्ट सेक्शंस में जाइए,
वहां पे आपको ग्रेड कार्ड का रिजल्ट देखना है तो अपना प्रोग्राम डाल के अपना, जैसे सीपीयूआई प्रोग्राम है तो सीपीयूआई प्रोग्राम डाल के अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के सीपी, हाँ जैसे ये सीपीयूआई हो गया तो सीपीयूआई प्रोग्राम डाल के अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के अपना एग्जाम का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही काफी सारा चीज आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि टारमेंट एग्जाम करना है। अच्छा, इग्नू में प्रोविजन है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपका रिजल्ट से, तो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन की विदिन 1 मंथ आप री इवालुएशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और आपको मतलब कि इफ यू वांट आप अपना आंसर्स का फोटोकॉपी भी मांग सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा फैसिलिटी इग्नू के अंदर है। तो मेरे ख्याल से आप अगर प्रोग्राम गाइड पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको प्रोग्राम गाइड में बहुत मदद मिलेगा। मैं फिर से ये बात कह रहा हूं कि हर सेंटर में जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का डेट है वो अलग अलग दिन में होते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा उम्मीद मत करिए कि हर जगह पे एक ही साथ होगा। बहुत सारे सेंटर में 5-5 दिन या फिर 6-6 दिन का कराते हैं, 12 दिन का प्रैक्टिकल एक्टिविटी। बहुत सारी जगह पे एक ही साथ 12 दिन कराते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सेंटर टू सेंटर, कहाँ पे उनका जैसे भी कन्वीनियंट है, क्योंकि जो टीचर आपको कराते हैं उनका कन्वीनियंस भी हमको देखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सब लोग आप अपनी रीजनल सेंटर में पहले कांटेक्ट करिए, अपनी स्टडी सेंटर में पहले कांटेक्ट करिए। अगर वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होता है, वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्टिविटी नहीं होगा, तब आप जयपुर के अंडर में करिए। ऐसा नहीं कि आपकी स्टडी सेंटर में भी हो रहा है, आपने वहां पे भी आधा किया, वहां पे भी आधा किया, ऐसा मत करिए। उसमें हमको अटेंडेंस का बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा। सो दैट आप उसको अवॉइड करने के लिए आप एक ही सेंटर से पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करिए प्लीज। और कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं 1-2 दिन में आप लोगों को प्रोग्राम गाइड भेज दूंगा। वैसे भी इग्नू वेबसाइट में प्रोग्राम गाइड है, आप लोग प्रोग्राम गाइड को अच्छे से पढ़िए। जो प्रोग्राम गाइड पढ़ता है वो अपने आप को हेल्प करने के लिए है, सो दैट यू कैन हेल्प योरसेल्फ एंड यू कैन डू द प्रोग्राम स्मूथली। कोई स्पेसिफिक सवाल है तो सर पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर माय स्टडी सेंटर। आपका जो स्टडी सेंटर है वो आपकी स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड में लिखा होगा। अगर लास्ट में 00 है तो उसका मतलब आपका रीजनल सेंटर ही आपका स्टडी सेंटर है। अभी आपका सवाल ऐसा होगा कि असाइनमेंट कहाँ जमा करें, असाइनमेंट आपको स्टडी सेंटर में जमा करना है। अगर आपका रीजनल सेंटर ही आपका स्टडी सेंटर है तो आपको रीजनल सेंटर में जमा करना है। बहुत सारी जगह में आपको असाइनमेंट जमा करना थ्रू ऑनलाइन होता है, उसके लिए आप अपना रीजनल सेंटर का गाइडलाइन देख लीजिए कि असाइनमेंट कैसे जमा करना है। बहुत सारी जगह पे हार्ड कॉपी असाइनमेंट जमा करवाते हैं, बहुत सारी जगह पे बोलते हैं कि आप ऑनलाइन असाइनमेंट अपलोड करिए। आपको अपने रीजनल सेंटर के हिसाब से गाइडलाइन फॉलो करके जमा करना है। यस, ऑनलाइन सबमिट करने का प्रोविजन है बहुत सारे रीजनल सेंटर के अंदर, बट नॉट ऑल द रीजनल सेंटर। बहुत सारे रीजनल सेंटर बोलते हैं आप हार्ड कॉपी जमा करिए, तो आपको हैंड रिटेन, इन एनी केस हैंड रिटेन आपको असाइनमेंट जमा करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में जब बनाऊंगा मैं शेयर करूंगा वेरी सून। प्रैक्टिकल के लिए आपको प्रैक्टिकल कोर्स कोड डालना है, थ्योरी के लिए आपको थ्योरी का कोर्स कोड डालना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों का अगर और कोई सवाल है तो मैं बता सकता हूं। प्रैक्टिकल हर जगह पे मैंने बार बार बताया, हर जगह पे जैसे चेन्नई का डेट अलग होगा, वो कब होगा वो चेन्नई का रीजनल सेंटर बताएगा। बैंगलोर में कब होगा वो बैंगलोर सेंटर बताएगा, ठीक है। हैदराबाद में कब होगा उसका डेट हैदराबाद बताएगा। मैं अभी से आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का डेट्स मैं अभी से बता नहीं सकता।
आप हिंदी में भी एग्जाम लिख सकते हैं, लेकिन आपका पूरा पेपर फिर आपको हिंदी में लिखना है। ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ आपने इंग्लिश में लिखा और एक पैराग्राफ हिंदी में लिखा, ऐसा नहीं करिए। आपको पूरा पेपर जो है हिंदी में ही लिखना है, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो। और दिसंबर एग्जाम विल गेट न्यू असाइनमेंट, यस, दिसंबर एग्जाम के लिए आपको नया असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। एवरी 6 months वी गिव ए न्यू असाइनमेंट। आपको इग्नू वेबसाइट में कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है वो मैंने देखा दिया, तो आप उस हिसाब से अपना एग्जाम फॉर्म फिल करिए। सर एक लर्नर्स पूछ रहा है, एनी डेमो वीडियो रिलेटेड टू एक्सरसाइज प्रैक्टिकल एक्टिविटीज? हाँ वो है, मैं आपको आप लोगों को शेयर करूंगा। वंस आई मींस मेक ए व्हाट्सएप ग्रुप विद इन 1-2 days आई विल मेक, देन आई विल शेयर द ऑनलाइन प्रैक्टिकल जो हमने कोविड टाइम में कराया था, वो मैं पूरा सेशंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई विल डू इट, जस्ट होल्ड इट फॉर सम टाइम। सोनिया जी, एग्जाम आप हिंदी आइदर इंग्लिश दोनों में किसी एक लैंग्वेज में दे सकती हो, कोई इश्यू नहीं। हाँ, लेकिन वो पूरा उसी लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन है आपने इंग्लिश में लिखा, क्वेश्चन भी आपने हिंदी में लिखा, ऐसा नहीं। यस यस। बाकी जिन्होंने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है, मैं उन सबसे कहूंगा कि 26 अप्रैल से पहले पहले अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ साथ प्रैक्टिकल फॉर्म भी सबमिट कर दीजिए प्लीज। देखिए, आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए इसलिए सर बार बार बोल रहे हैं जल्दी करने के, क्योंकि हर एग्जाम सेंटर में सीट लिमिटेड होता है। कई बार क्या होता है कि आपको नियरेस्ट आपके घर से 2 किलोमीटर दूर में एक एग्जाम सेंटर है, लेकिन वहां पे आपको सीट नहीं मिलने की वजह से आपको दूर में 30 किलोमीटर 40-50 किलोमीटर दूर का एग्जाम सेंटर मिल सकता है, क्योंकि हर एग्जाम सेंटर में जो नंबर ऑफ दिस सीट इन ए पर्टिकुलर डे लिमिटेड होता है। असाइनमेंट ऑलरेडी वेबसाइट में है। देखिए, बहुत सारे लोग आप में से काफी मैच्योर लोग हैं, आप लोग अभी स्कूल्स का बच्चे नहीं है, आप युवा कर रहे हैं और एक एडल्ट मोटिवेटेड लर्नर है। मैंने इग्नू वेबसाइट में देखा दिया है कि आपको कहां से असाइनमेंट डाउनलोड करना है। अभी आप ये मत पूछिए कि आप असाइनमेंट आपको डाउनलोड करके मोबाइल में भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए, ईमेल भेजिए। वो सब आप का सवाल और डिमांड जायज होता अगर आप स्कूल के बच्चे होते। अभी आप स्कूल के बच्चे नहीं रहे हैं, इसलिए थोड़ा मैच्योरली बिहेव करिए और अपने आप को थोड़ा सा मदद करिए। टेंटेटिव एग्जाम डेट शीट अवेलेबल है, अभी सर ने बताया डेमो के माध्यम से। मैंने देखा भी लिया है जुलाई की, अभी दिखाया, फिर भी आप सवाल कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द मैच्योरिटी प्लीज। ठीक है, तो आप इग्नू वेबसाइट को थोड़ा सा ब्राउज करिए, ठीक है, तो फिर आप अपने आप को भी हेल्प कर पाएंगे। और फिर आप जब अपने आप को हेल्प कर पाएंगे तो आपके अंदर क्वेश्चंस कम होगा, फिर आपकी अंदर लगेगा कि बहुत इजीली प्रोग्राम खत्म हो गया। सर असाइनमेंट हिंदी में लिख सकते हैं कि एक स्टूडेंट पूछ रहा है? लिख सकते हैं। देखिए, हमें ज्ञान से मतलब है, चाहे आप हिंदी में लिखिए, तमिल में लिखिए, इसमें हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ, कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पूरा असाइनमेंट लिखिए। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि असाइनमेंट क्या प्लेन पेपर में लिखे, रोल पेपर में लिखे, किस इंक से लिखे, वो सब बिल्कुल स्कूल चाइल्ड की तरह क्वेश्चन से। फिर भी मैं बता देता हूँ, आप कोई भी पेपर में लिखिए, व्हाइट पेपर A4 साइज विल बी रिकमेंडेड वन। रूल पेपर में भी लिख सकते हैं, वन साइड और बोथ साइड में लिख सकते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू पुट द पेज नंबर, सो दैट कि बीच में अगर पेज गायब हो गया तो जो एसेस कर रहा है उसको पता चले कि हाँ, बीच में से 2 पेज गायब हो गया। अगर आप हार्ड कॉपी जमा करें तो प्रॉपरली बाइंड करिए, सो दैट बीच में से कोई पेपर मिस ना हो जाए, ठीक है। और कोई भी ब्लू इंक या फिर ब्लैक इंक किसी से भी लिख सकता है। नॉर्मली आप रेड इंक या फिर ग्रीन इंक से अवॉइड करिए, सो दैट जो भी आपको असाइनमेंट पड़ेगा उसके लिए भी थोड़ा इजी हो। मैं 1-2 दिन में ईमेल भेजूंगा, आज मैं ईमेल नहीं भेजूंगा,
maybe tomorrow morning I'll send email. Actually the number of the student is quite high. एक दिन में हम 500 से ज्यादा ईमेल नहीं भेज सकते हैं जीमेल में, so that आप लोगों को मतलब कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़े अदर स्टूडेंट्स को कल और नेक्स्ट डे ऐसा भी हो सकता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि धैर्य रखना है, सो दैट हम मतलब कि अपने क्वेश्चंस कम करें। मैं आप लोगों को एक मेरा पर्सनल ईमेल आईडी दे देता हूं। ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है biplabjamati@gmail.com। आप उनमें कर सकते हैं अगर आपको जरूरत हो तो, लेकिन फर्स्ट प्लीज वेट फॉर माय ईमेल, ओके? उसके बाद ही आप अपना सवाल है जवाब है वो करिए और प्रोग्राम गाइड पढ़िए प्लीज, अदरवाइज आपको सवाल बहुत ज्यादा होगा और हर स्टूडेंट्स को फोन पे बताना मुश्किल है। दूसरा, हाँ, फोन कह के ये याद आया, मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के फिर से बोलता हूँ, रात 10 बजे की बाद और सुबह 4 बजे से पहले प्लीज आप फोन मत करिए। मैं भी एक इंसान हूँ और मतलब परिवार में लोग रहते हैं, तो 10 बजे के बाद रात में और सुबह 4 बजे से पहले आप लोग फोन प्लीज मत करिए। सर, अब अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो हम बात कर सकते हैं। I think all questions or query you covered, sir. Thank you very much. Hopefully all CBY learners got the benefit from today's induction meeting. This is very important programs. So induction program is very essential for all learners to know the audio system, to know